Then after this, let's say if I give you the second situation, I have given you say P naught A, P naught B, and I have given you vapor phase composition YA, YB. I think ये मैंने कोई क्वेश्चन शायद नहीं करवाया था, बट लेट्स से नहीं भी करवाया तो भी you can determine the P total and XA and XB. ठीक है, कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? ये एक रिलेशनशिप है which I would want you to derive by yourself. तो I had derived this relationship, or not derived actually, हाँ actually derive ही बोल सकते हो, in terms of the liquid phase composition. PT is equal to XA P naught B, P naught A plus XB P naught B, right? This was Raoult's law. तो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन के टर्म्स में पीटी निकालना आता है, वेपर फेज के कॉम्पोजिशन के टर्म्स में पीटी निकालना आएगा आपको? निकाल के बताओ जरा, इसको डिराइव करके बताओ. कैन यू डिराइव दिस? ट्राई करो. हाँ फर्स्ट पेज ही है, मतलब स्टार्ट ही क्या है अभी. वही पिछला वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन. लिखा सबने? ये डिराइव भी हो पा रहा है? ठीक है, कैसा है इसका डेरिवेशन? काफी सिंपल है. आपको XA का वैल्यू पता है, मतलब एक्सप्रेशन पता है, PA अपॉन P नॉट A होता है. PA कैन बी रिटन एज YA इंटू PT, एंड सिमिलरली XB PB अपॉन P नॉट B होता है. PB कैन बी रिटन एज YB इंटू PT. इन दोनों को आप ऐड कर दो, XA प्लस XB तो 1 होता है, तो YA अपॉन P नॉट A प्लस YB अपॉन P नॉट B कॉमन PT आ जाएगा. तो ये आपका रिजल्ट आ गया, 1 by PT इज इक्वल टू YA अपॉन P नॉट B प्लस YB अपॉन P नॉट B. राइट, समझ में आया? काफी सिंपल ही है, नथिंग टू वरी अबाउट. नाउ लेट्स से अगर आपको P नॉट A, P नॉट B और PT मिलता है, तो कैन यू डिटरमाइन द
लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज कॉम्पोजिशन। ये ट्राई करो, इसका आंसर निकालो, मुझे फटाफट बताओ क्या आ रहा है। ऑलराइट, क्या आंसर आया? लिक्विड फेज का 3/5 2/5 करेक्ट, राइट। एंड वेपर फेज का भी निकाल सकते हो। इट विल कम आउट टू बी 0.25 एंड 0.75। करेक्ट। Now, based on this, can you observe one of the things that I had highlighted in the previous lecture as well? Which was that यहाँ पर liquid phase जो रहता है, that is richer in the less volatile component. इन दोनों में से less volatile, more volatile कौन सा है? A और B में, depending on their P naught. This is less volatile. B is more volatile, ना? है कि नहीं? तो यहाँ पर can you compare the two, the liquid and the vapor? Liquid को हम लोग residue भी बोलते हैं और vapor phase को distillate भी बोलते हैं. These are some terms that we use in distillation, which is what I'm going to explain next. But introducing those terms and the concept underlying it
कैन यू नोटिस दैट इनमें लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है? ए और बी में ए है, तो कैन यू सी ए यहाँ पर 40% है और यहाँ पे 25% ही है. कैन यू सी दिस स्टेटमेंट टू बी होल्डिंग ट्रू? The liquid phase of the residue is richer in the less volatile component as compared to the distillate. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Can you also notice this statement which is there on the right hand side, that the vapor phase or the distillate is more volatile component as compared to residue? है कि नहीं? यहाँ पर जो मोर वॉलेटाइल था बी, वो 60% ही है, यहाँ पर 75% है. राइट, लिखो इसको. ठीक है, लिख लिया सबने? All right. Now let's look at the process of distillation. Distillation के process में क्या होता है? What is it that you have in background? What is it that you have in mind about the process of distillation? क्या पता है आप लोगों को? ऑलरेडी वर्ड सुना हुआ होगा आप लोगों ने. कुछ बताओ, एक्सप्लेन करो, समझाओ. Based on difference in boiling point of two miscible liquids. एकदम मस्त डेफिनेशन रटा हुआ है. But what is based on? Like, what is based on the difference in the boiling point of two miscible liquid? Separation. Correct. Separation of liquids from a mixture based upon the difference in their boiling points. Right? तो यहाँ पर
we'll study the same. It is the process to separate mixture of two or more liquids on the basis of the difference between their vapor pressure or their boiling point. राइट, तो यहाँ पर जैसे आपने ऊपर नोटिस करा कि मान लो, ठीक है, मैंने लिक्विड फेज में इसका 40% रखा था ए का, और बी का 60% रखा था. दिस वाज माय लिक्विड फेज. कैन यू सी, जो वेपर फेज है उसमें ए 25% और बी 75% आया है. We have not been able to completely separate them, but can you notice that some separation has been achieved? The vapors are richer in B as compared to the liquid. They are richer in the more volatile component. ये समझ में आया देख के? So this is what happens in distillation, right? Depending upon the composition, depending upon the vapor pressure, we are able to achieve some degree of separation, okay, between the mixture of liquids. ठीक है, किस तरीके से हम इस सेपरेशन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? ये आप एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर समझ पाओगे. ठीक है, लेट मी टेक अप दैट एग्जाम्पल फॉर यू. ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. ये एग्जाम्पल अब आप ट्राई करो. ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. ऑफ कोर्स विल डिस्कस द सॉल्यूशन एंड ऑल. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप एक बार पढ़ो. एंड दिस एग्जाम्पल इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. देन आई विल एक्सप्लेन. ट्राई करो. राइट, तो आपको विजुअलाइजेशन समझ में आ रहा है? यहाँ पर एक वेसल है, उसमें हम लोगों ने लिक्विड मिक्सचर तैयार किया.
फिर उनके जो वेपर्स थे उनको हमने कलेक्ट करा, कंडेंस करा। ठीक है, जो वेपर्स थे इनको कलेक्ट करके कंडेंस करके लिक्विड बनाया, राइट। और उनके फिर जो वेपर्स हैं उनका कॉम्पोजिशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ अभी? जो लिक्विड था और उसके साथ में उसका वेपर था, उस वेपर को कंडेंस करके पहले लिक्विड बनाया, फिर उसके जो वेपर्स बने उनका कॉम्पोजिशन आपसे पूछा जा रहा है। ट्राई करो, देखो। करेक्ट यश।
ऑल राइट, कुछ आया आंसर? एटलीस्ट इतना तो कर पाए होगे, कम से कम जो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन है वो तो निकाल लिया होगा बेस्ड अपॉन द डेटा दैट इज गिवन। बेंजीन और टोलुइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो मोल्स पता है, तो मोल से मोल फ्रैक्शन से निकाल ही लिया होगा। यहाँ तक आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा तो आगे बढ़े बच्चे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया था ना सबने? अच्छा, अभी लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन के बाद में आपने वेपर फेज कॉम्पोजिशन भी निकाल लिया होगा बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला 4/19 एंड 5/15, 15/19 आ रहा होगा। यहाँ तक तो आ गया होगा अब, इतना तो अपन करते ही आ रहे हैं अभी तक। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, दैट इसी डिस्टिलेट को हमने कंडेंस करके लिक्विड बना दिया। तो कैन यू सी द कैच इन द क्वेश्चन? दिस इज वेयर द कैच इन द क्वेश्चन वाज, दैट ये जो वेपर फेज कॉम्पोजिशन था, ये सेकंड स्टेज में हमारा लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन होगा ना, बिकॉज द वेपर टेकन आउट इज कंडेंस्ड इनटू द लिक्विड ओवर हियर, है कि नहीं? ये समझ में आया? तो यहाँ पर ये एक्स डैश है, एक्स डैश भी 4/19 एंड 15/19 हो गए। अब आपको वाई डैश है, वाई डैश भी निकालना है, कितना होगा? बताओ क्या आंसर आ रहा है?
All right, so now based upon this, हाँ करेक्ट, 4/49 and 45/49 ऐसा आ जाएगा. This would be your answer. So can you see that because of this second stage, my separation was now even more. मतलब यहाँ पर आप notice करोगे first stage में B was 55% in the liquid phase and यहाँ पर B was 79%, right? Next stage में आप लेके गए तो क्या हो गया, जो वेपर फेज में B मिला वो 91% हो गया, right? So can you see the separation working with each added step, each added stage of distillation? समझ में आ रहा है ये how distillation work, how multi-stage distillation works? इसके आगे मैं एक और स्टेज ऐसा लगाऊं, लाइक ये वेपर्स को लूं, कंडेंस करूं और एक वेसल में रखूं और फिर उसके वेपर्स बनाऊं, तो उसमें बी का परसेंटेज और ज्यादा होगा, राइट? सेपरेशन विल बी इवन बेटर. बट व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? कैन यू टेल मी व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? परसेंटेज तो बेटर हो रहा है, बट कैन यू सी that with each stage the quantities that I'm going to get are going to be very low, right? ये वेपर्स यहाँ के यहाँ पे लेके आया, फिर इसके जो वेपर्स बने उनको अगली स्टेज में लेके आ रहा हूँ, तो प्योरिटी बढ़ती जा रही है, परसेंटेज प्योरिटी बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है, बट जो मोल्स है मेरे ओवरऑल वो तो कम होते जा रहे हैं ना. यहाँ पे ओवरऑल का एक छोटा सा ही पार्ट है जो डिस्टिलेट के मोल्स है वो लेके मैं यहाँ पे आया, फिर उनके मोल्स वेपर में जो है उनको मैं लेके गया. तो समझ में आया है कैसे वर्क कर रहा है? This is isothermal distillation that I'm doing. Like I'm not, or you can say I am like keeping the temperature constant. I am varying the external pressure. ठीक है? और आइसोबेरिक डिस्टिलेशन भी होती है जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज करते हैं. कॉन्सेप्ट यही रहता है. समझ में आया ये? हाँ, कॉपी कर लो. क्या मिस हो गया बताओ सुमित? ये लिखा तुमने? यस सर, बीच वाला. एक मिनट, इतना लिख लिया तो फिर ये वेपर फेज कॉम्पोजिशन वाला इतना पार्ट ये लिखा? सर 1 मिनट. लिख लो.
लिखा? यस। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला पार्ट ये सब तो बाकी। ठीक है, समझ में आया बाकी लोगों को भी क्वेश्चन कैसे करना था? व्हाट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज? डन। ओके, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, ये जो हम लोगों ने ऊपर पूरा एनालिसिस करा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, दिस वाज अ न्यूमेरिकल मेथड. What was the numerical aspect about it? Like we used our understanding of Raoult's law, Dalton's law, right? And based upon that came up with the compositions and got the answer. Another way in which this question can be done or can be visualized is a graphical method. That is called as a PXY diagram. Now ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. Now what exactly is a PXY diagram? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर. So let's notice first PX diagram. PX diagram is, as you can guess, vapor pressure on the y-axis and liquid phase composition on the x-axis. किसका liquid phase composition? Typically the one which is more volatile, उसका ले लेते हैं हम लोग. तो यहाँ ऊपर A और B में कौन ज्यादा volatile था? यहाँ पे हमने P0 A P0 B निकाला था ना, B ज्यादा volatile था. ठीक है, तो इन केस B ज्यादा वोलेटाइल होता है तो हम लोग यहाँ पर नीचे, ठीक है, लेट मी डू सम एडिटिंग. यहाँ पर नीचे हम लोग B का मोल फ्रैक्शन प्लॉट कर लेते हैं. तो ये XB 0 है तो XA 1 होगा, और फिर XB 1 हो जाएगा तो XA 0 रहेगा. राइट है कि नहीं? अच्छा, जब XB 0 है तो जो मिक्सचर है उसमें सिर्फ A ही है, तो ये इसका P0 A होगा. P0 A कितना था अपन ने निकाला? 90 mmHg. एंड जब सिर्फ B है ना, राइट, XB 1 है तो P0 B के बराबर होगा PT. राइट, और ये हमने कितना देखा था, वाज 270 mmHg, है कि नहीं? करेक्ट. नाउ बीच में एनी कॉम्पोजिशन ऑफ देयर PT कैसे निकालते हैं हम लोग इस रिलेशनशिप से? कैन यू सी दैट दिस रिलेशनशिप इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, है कि नहीं? तो जो भी कॉम्पोजिशन आप बोलोगे उसके करस्पॉन्डिंगली आपको पता पड़ जाएगा कितना टोटल प्रेशर है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज अ PX डायग्राम.
इसको कॉपी कर लो। Done, sir. So wait. ठीक है, लिख लिया अभी? Yes, sir. अच्छा, अभी पी वाई डायग्राम नोटिस करना। पी वाई डायग्राम क्या होगा? कैन यू गेस? जो वेपर प्रेशर होगा और वेपर फेज कॉम्पोजिशन होगा उसके बीच में, राइट? सो कैन यू लाइक try to draw how it will look like? Maybe take an attempt in rough. मैं तो दिखाऊंगा ही सही। Yes, sir. ट्राई करो फिर। ऑलराइट, बनाया? चलो, नहीं बनाया है तो भी ठीक है, बना लिया तो भी यहाँ पर ऑब्जर्व करो। राइट, ये पी टी वाई एक्सेस पे होगा, एक्स एक्सेस पे ये वाला वेपर फेज कॉम्पोजिशन। तो ये वाई बी इक्वल टू 0 से वाई बी इक्वल टू 1 जा रहा होगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस वाई 1 और वाई बी 0 रहेगा। तो लाइक इस पॉइंट पर, इस एक्सट्रीम पर, you have P naught A as the vapor pressure and that extreme per P naught B, and anything in between would be given by this graph. And can you see this is a non-linear relationship between PT and YA, because 1 by PT is equal to YA upon P naught B plus YB upon P naught B. तो ये ऐसा non-linear सा ग्राफ आता है। Now, while drawing this graph, I want you to be extremely careful that don't draw this graph something like this. ठीक है, जो P total है वो रहने वाला तो पीए और पीबी के बीच में ही है। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन पी नॉट बी और लेस देन पी नॉट ए। तो उसी के बीच में ये आपको कर्व यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करो अच्छे से। हाँ, पीटी है वाई एक्सेस का। तो जो पीटी है वो पी नॉट है और पी नॉट बी के बीच में रहने वाला है ना।
Done, sir. ऑलराइट, लिखा सबने ये? अब पी एक्स वाई डायग्राम क्या होगा? एज यू कैन अंडरस्टैंड, पी एक्स वाई डायग्राम इज नथिंग बट अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ द टू। दोनों को एक साथ बना दिया। तो बेसिकली ये मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है। ऑफ कोर्स मे बी यू कैन डू इट इफ यू आर राइटिंग ऑन पेपर, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ पर उठाया और साथ में एक ही ग्राफ पे बना के ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दैट इज व्हाट इज योर पी एक्स वाई डायग्राम, ठीक है। तो वो आप नोटिस करना कैसा दिखेगा। ठीक है, लेट मी actually eliminate some of the unnecessary things to begin with, ठीक है। या इसको मैं एक बार के लिए डबल कॉपी करके रखता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, वो मैंने स्क्रीन फ्रीज कर रखा है because I am doing something also in the background. There are two learnings that I would want. I don't want them to be on the same diagram. That's why I'm separating them. Okay, can you see how they are going to look now together? अभी तो दिख रहा होगा। This is how they are looking together, the PXY diagram. The blue one is your liquid line, like liquid phase composition and P total. And the red wala was the vapor phase composition. Draw करो इसको। हाँ, ड्रॉ करा इसमें। अब नोटिस करना, ठीक है। ये जो आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, this actually gives you an idea about how the mixture is going to be given external pressure conditions, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है। मान लो आपने कोई कॉम्पोजिशन से स्टार्ट किया, ठीक है। यू हैव सम कॉम्पोजिशन जिससे आपने स्टार्ट किया, आपने दोनों ए और बी को मिक्स कर दिया, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी सम एक्स ए वैल्यू, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली सम एक्स बी वैल्यू, ठीक है। कुछ होगा आपने जिससे स्टार्ट करा।
अब नोटिस करना, डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशंस आर, ठीक है, अगर आप नोटिस करना, ठीक है, यहाँ पर इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग मैं प्रेशर्स नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना that if your external pressure is more than this, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने P1 मार्क करा है, ये P2 मार्क करा है, राइट, तो if your external pressure is more than P1, तो आप किस रीजन में हो, you are in the liquid region। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वेसल लिया था जिसमें आपने अपना वॉलेटाइल लिक्विड A और B भरा था, ठीक है, और उसके ऊपर मान लो पिस्टन है, ठीक है, एंड योर एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन दिस P1, ठीक है, विच इज द टोटल वेपर प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू दिस लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन। तो आपका A और B प्रेडोमिनेटली लिक्विड फेज में ही होगा, ठीक है, हार्डली एनी वेपर्स वुड बी देयर बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन और समथिंग, बट मेजरली इट विल बी इन लिक्विड फेज ओनली, ठीक है। इफ योर P external is below this P2, इसके नीचे है, then आपका A और B पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। If your P external is less than P2, then A and B will be predominantly in the vapor form only. If your P external is between P1 and P2, then you will have what we will call as vapor liquid equilibrium, okay, between these two. If your external pressure exists, then we are in the VLE region. We call this as vapor liquid equilibrium region. Both the phases are going to coexist with each other, ठीक है, मतलब this is actually based upon this context। यहाँ पे नोटिस करना that temperature is constant। आप लोगों को लाइक इस चीज का मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। अगर कोई लिक्विड है, इसको बॉईल करना है, तो मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं या फिर दूसरा क्या करूं, P एक्सटर्नल कम कर दूं। ये बैकग्राउंड पता है नहीं पता है? आई कैन आइदर इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और वो P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द अदर थिंग दैट आई कैन डू, P एक्सटर्नल को घटाना शुरू कर दूं ताकि इट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर एंड तब मेरा बॉइलिंग हो जाएगा। हैव यू सीन दोस यूट्यूब वीडियोस बॉइलिंग एट रूम टेम्परेचर? आई थिंक पहले भी दिखाए हुए हैं शायद मैंने आपको, हाँ या ना, बताओ भाई। हैव यू सीन बॉइलिंग एट रूम टेम्परेचर? P एक्सटर्नल कम कर देते हैं ना अपन उससे, तो बॉइलिंग हो जाती है। तो अगर मैं P एक्सटर्नल P2 के नीचे कर दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वेपर फेज में रहेगा। अगर P1 से ज्यादा रहेगा तो मेरा पूरा का पूरा मिक्सचर ऑलमोस्ट लिक्विड फेज में रहेगा, और P1 P2 के बीच में रहेगा, ठीक है। जो मिक्सचर मैंने लिया था वो मेरा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब कुछ पार्ट लिक्विड में कुछ पार्ट वेपर में। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ड्रॉ करो इसको।
लाइक इतना पार्ट को भी लिख लो। ठीक है, लिखा है सबने? हाँ हाँ, पी एक्सटर्नल अगर पीटी के बराबर होगा तो बॉइलिंग हो जाएगा ना। तो वही मैंने आपको बोला, अगर आपने ये लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन लिया, इसके करस्पॉन्डिंगली आप पीटी निकालोगे, ये इस ब्लू लाइन पे आएगा, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन के अराउंड पीटी। तो अगर आप इसके ऊपर है तो बॉइलिंग नहीं हो रही है, पी एक्सटर्नल इज मोर देन द वेपर प्रेशर, तो बॉइलिंग नहीं हो रही है। बट आप पी एक्सटर्नल को अगर P1 या उसके नीचे ले जाते हो तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी तो वेपर फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप पी एक्सटर्नल को और कम लेके आ जाओगे, ठीक है, ये जो P2 यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ, जो रेड वाला कर्व है, इसके नीचे लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में चला जाएगा। बिटवीन P1 and P2 देयर विल एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड द लिक्विड फेज। ठीक है, समझ में आया ये? ना, अब ये जो हम लोगों ने डिस्टिलेशन का प्रोसेस ऊपर करा था, ठीक है, व्हाट वी हैड डन ऊपर, इसी को अब मैं PXY डायग्राम पे आपको दिखा रहा हूं। तो नोटिस करना वो PXY डायग्राम पे कैसा दिखेगा। ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, ये मेरा ब्लू वाला P एंड लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन वाला लाइन है, ये रेड वाला मेरा P एंड वेपर फेज कॉम्पोजिशन वाला लाइन है, राइट। एंड दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड विथ, XB इक्वल टू 5/9, है ना। दिस इज व्हाट आई, आपके नोट्स में आपने लिखा हुआ है ना, दैट इज व्हाट यू स्टार्टेड विद द लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन। तो इस लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग आपने ऐसे डॉटेड लाइन बनाई ऊपर तक, कहां पर, जहां पर ये लिक्विड लाइन को कट करेगी। ठीक है, नाउ जो आपको एक्सटर्नल प्रेशर रखना होगा वो एक्चुअली यहां पर लाके रखना होगा। ठीक है, you will need to bring down the external pressure to this value, and यहां पर फिर आप वेपर्स जो आएंगे उनका कॉम्पोजिशन बता पाओगे। तो वेपर्स का कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा, आपने इस एक्सटर्नल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, इस टोटल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आपने हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सट्रापोलेट करी, वो रेड कर्व को जहां पे मीट कर रही है, राइट, दैट इज गोइंग टू गिव यू द वेपर फेज कॉम्पोजिशन। तो ये YB इक्वल टू 15/19 आया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका इवेपोरेशन हुआ फर्स्ट स्टेज के अंदर। ये लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन था, ये वेपर फेज कॉम्पोजिशन था। ठीक है, अब आप नोटिस करना, आपने क्या करा, इसी वेपर को कंडेंस कर दिया। ठीक है, तो ये जो YB है ये X' बना दिया आपने नेक्स्ट स्टेज में। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वर्टिकल लाइन से,
कि वही जो वेपर था एग्जैक्टली वही कॉम्पोजिशन का अपन ने लिक्विड बना लिया, तो जस्ट वर्टिकली ऊपर चले गए हम लोग, ठीक है। दैट इज, दिस वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग योर कंडेंसेशन। अब ये जो आपने यहाँ पर लिक्विड रखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंगली आपने एक्सटर्नल प्रेशर एडजस्ट किया, राइट। उसके जो वेपर्स बने उनको आपने फिर कलेक्ट किया, राइट। एंड देन यू नोटिस देयर कॉम्पोजिशन। कैसे? ये जो आपका प्रेशर था उसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करी, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। उस हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको जो रेड लाइन पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, रेड कर्व पे एक्चुअली, वो आपका वेपर फेज कॉम्पोजिशन हो जाएगा। सो दिस विल बी योर सेकेंड स्टेज, राइट। अगर आपको थर्ड स्टेज करना होता तो वापस क्या करते, ये वर्टिकल लाइन और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आपको थर्ड स्टेज का कॉम्पोजिशन मिल जाता। समझ में आ रहा है? कंडेंसेशन करते वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इवेपोरेशन से शो करते। तो कैन यू सी द सेम process of distillation being represented on this pxy diagram? देखो समझ में आ रहा है तो ड्रॉ करो, नहीं आ रहा है तो डाउट पूछो, क्लियर करो। हाँ, लिख लिया सबने ये? टॉलुइन होता है, टॉलुइन थोड़ा ना होता है। टी ओ, टॉलुइन, टॉलुइन, टी ओ एल यू, स्पेलिंग तो यहाँ पे मैंने गलत लिखी हुई है। टी ओ एल, टॉलुइन, यू ई एन ई। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया डिस्टिलेशन का प्रोसेस? How it is shown on a PXY diagram? ठीक है, तो आई थिंक बेस्ड अपॉन दिस एक दो और जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो आप आंसर कर पाओगे फ्रॉम द बुकलेट।
अच्छा, let's understand now the next concept. नहीं, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं ना प्रेशर, कंडेंसेशन के लिए तो प्रेशर बढ़ाना पड़ता है ना. You will have to compress the gas to condense it. ठीक है, I think let me make you do one more question which should give you a better understanding of this concept. थोड़ा ज्यादा ही फंडामेंटल क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, आप लोगों से. Let me do that. I think that will help you much better in understanding. Just give me one moment. Hmm. चलो, ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई करो. And then explain me. एक अटेम्प्ट आप लो, फिर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ. ट्राई दिस क्वेश्चन.
ऑलराइट, आया कुछ आंसर इसका? करेक्ट, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। लाइक एक्स ए और एक्स बी आपको पता है ना, एंड पी नॉट ए पी नॉट भी पता है, तो आपने पी टोटल निकाल लिया, एंड पी टोटल आपका 400/3 mmHg आता है। तो पी एक्सटर्नल जब तक आप यहाँ पर नहीं लेके आओगे तब तक बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी, फर्स्ट बबल विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन द सोल्यूशन, राइट। तो अगर आपका इनिशियल पी एक्सटर्नल लेट से ज्यादा है, से 760 mmHg है, तो यहाँ पर कैसा होगा, मतलब इनफैक्ट इफ पी एक्सटर्नल इज मोर देन वेपर, तो फिर ये जो आपका पिस्टन होगा वो तो लिक्विड की सरफेस पे रेस्ट कर रहा होगा ना, because it has to be balanced. This massless frictionless piston has to get equal and opposite forces to be lifted up, है कि नहीं? तो अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा है और वेपर का प्रेशर जो है वो कम है, तो ये कैसा रहेगा, ये लिक्विड की सरफेस पे रहेगा, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ए एंड बी विल बी इन द लिक्विड फेज ओनली, ठीक है। हार्डली एनी वेपर, मतलब विल से हार्डली एनी वेपर विल बी देयर ड्यू टू इवेपोरेशन। अब आप क्या करोगे, पी एक्सटर्नल को रिड्यूस करोगे, राइट। कहाँ तक रिड्यूस करोगे, जहां तक वो वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, एंड वंस दैट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, तो क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, लाइक यहाँ अंदर बबल बनेगा इनसाइड द सोल्यूशन, है कि नहीं, एंड आपका बॉइलिंग विल स्टार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आया? ठीक है, लिख लो, जिसको नहीं आया था वो एक बार यहाँ पे, वैसे तो आ ही गया होगा मोस्टली सबको, बट मे बी दिस कॉन्सेप्ट और व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ये अब आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, तो यू कॉपी दिस डाउन, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट का बताऊंगा।
लिखा सबने ये? अच्छा, अब सेकंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा? सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बबल। खैर वो तो आसान है, आपने x से x भी निकाल लिया है, तो ये तो y भी निकालने वाली बात होगी, तो 0.5 आ जा रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट इज प्रीटी सिंपल। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर इज फर्दर लोअर, डिटरमाइन द P एक्सटर्नल at which the last drop of liquid remains. ये क्या रहेगा? What will be the answer for this? बताओ जरा। नहीं नहीं नहीं, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप नोटिस करो क्या कहा जा रहा है थर्ड पार्ट में। एक्सटर्नल प्रेशर इज फर्दर लोअर्ड द वैल्यू ऑफ द P एक्सटर्नल विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन्स। यानी कि जो पूरा का पूरा लाइक कॉम्पोजिशन था ये x से xb का, ये y भी हो गया है ना। यहाँ पर प्रोसेस समझना क्या हो रहा है। इनिशियली P external was more than 400 by 3 mmHg, तो almost all of the A and B was in liquid। फिर आपने प्रेशर लोअर करा, तो यहाँ पे पहला बबल ऑब्जर्व हुआ, लाइक बॉइलिंग बिगिंस राइट व्हेन द P external was 400 by 3 mmHg। आपने फर्दर P external लोअर करा, राइट तो क्या हो रहा है? जो बॉइलिंग है वो कंटिन्यू हो रही है, लाइक द लिक्विड लेवल स्टार्ट्स टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली एंड द वेपर्स स्टार्ट टू अक्यूमुलेट अबव इट, राइट। व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट मैंने P एक्सटर्नल कितना लो कर दूं कि एक बस लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टिल शुड एग्जिस्ट, राइट, बट ऑलमोस्ट सारा का सारा वेपर में बन जाए। तो यानी कि जो 1 मोल 2 मोल था ये अब सब वेपर फेज में आ गया ना। यानी कि जो मेरा y डैश ए और y डैश बी 1/3 2/3 हो गया, और P नॉट ए P नॉट भी पता है, तो कैन यू कैलकुलेट नाउ x डैश ए एंड x डैश बी एंड P डैश टी? ये कर सकते हो? कर सकते हो तो फिर करो।
ऑलराइट, आया इसमें आंसर? हाँ, जो पीटी है वो 120 mmHg आ जाएगा एंड x dash a and x dash b like the composition of the liquid phase come out to be yes 1/5 and 4/5. Correct, 0.2 and 0.8. Right, so that will be the composition of your last drop of liquid. Now this entire process, can you visualize on the pxy diagram? इसका pxy diagram बना के एक बार बताओ कि मुझे कैसा दिख रहा है, जो मैंने अभी सिखाया, बताया, समझाया, उसका आउटकम।
ऑलराइट, बनाया आप लोगों ने? कैसा दिख रहा है पी एक्स वाई डायग्राम? सो इसमें पी एक्स वाई डायग्राम आप नोटिस करोगे, राइट? ठीक है, ए और बी आपने यहाँ पर ए मैंने ज्यादा वोलेटाइल लिया है ना, हाँ ए ज्यादा वोलेटाइल लिया है, तो मैंने यहाँ पे ए का कॉम्पोजिशन नीचे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये पी नॉट ए 200 है और पी नॉट बी 100 है। ये लिक्विड फेज एंड वेपर फेज कॉम्पोजिशन होंगे। जो स्ट्रेट लाइन होगी ब्लू में वो आपको लिक्विड लाइन बताएगी, जो रेड में है वो आपको वेपर लाइन बताएगी। एंड ऊपर का जो रीजन है वो लिक्विड रीजन है व्हेन पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी टोटल, एंड नीचे का रीजन जो है वो वेपर रीजन है व्हेन पी एक्सटर्नल लेस देन दिस 120, राइट? तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो ये 133.3 that was your 400 by 3 and 120 are those compositions like which correspond to the like first bubble and last drop of liquid। तो ये अगर फर्स्ट बबल की बात करूं मैं, फर्स्ट बबल मतलब पूरा का पूरा मेरा ए और बी के फॉर्म में ही था, यानी कि एक्स वाज 1/3 and as a consequence this pt was 400/3। so this was the pressure above which there was hardly any vapors, but at this the first bubble starts to form। the other case जहां पर हमने देखा था कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, राइट? तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा ए एंड बी वेपर फेज में आ गया था, तो मेरा वेपर फेज कॉम्पोजिशन 1/3 था। एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा 1/3, ये जो रेड वाला कर्व है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करा, वो प्रेशर निकाला, वो 120 mmHg रहता है, राइट? तो ये मैंने इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का कॉम्पोजिशन बता दिया, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से वो जो पहला बबल फॉर्म होता है उसका कॉम्पोजिशन बता दिया, राइट? बीच में if you keep the P external you will get vapor liquid equilibrium, you will get a significant portion in vapor phase, significant portion in liquid phase। ठीक है, this is actually the pressure which is going to be in between जब हमें डिस्टिलेशन करनी होगी। तो जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तब आप नोटिस करना क्या होगा, डिस्टिलेशन में अगर मैं ऐसा प्रेशर करूंगा तो मेरा जो वेपर लिक्विड मिक्सचर था वो स्प्लिट हो जाएगा। इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, वन वुड बी द वेपर पार्ट, द अदर विल बी द लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट का कॉम्पोजिशन है वो यहाँ से पता पड़ेगा, जो वेपर पार्ट का कॉम्पोजिशन है वो यहाँ से पता पड़ेगा। दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस इन डिस्टिलेशन, दिस इज द ट्रू अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर ये अपने जेई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो आपको जो मैंने ऊपर करवाया था वो यहीं पे डिस्टिलेशन करा दिया था कि जो थोड़ा सा अमाउंट का वेपर बना है उसको अपन इवेपोरेट कर रहे हैं फिर कंडेंस कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने बता दिया था। बट दैट इज नॉट हाउ प्रैक्टिकली इट हैपेंस, बट अपने सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यही रखते हैं। अदरवाइज एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर आप वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के बीच में रखते हो, यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, राइट? सम ऑफ इट गेट्स इन द लिक्विड फेज, सम ऑफ इट गेट्स इन द वेपर फेज, ठीक है? उस जो सिग्निफिकेंट अमाउंट आया वेपर फेज में उसको अब आप कंडेंस करते हो, ठीक है? कंडेंस करके लिक्विड बनाते हो, फिर से आप प्रेशर कम करते हो, फिर से स्प्लिटिंग करते हो, ठीक है? से यहाँ पे कुछ स्प्लिटिंग कर दी, ठीक है? ये आपका लिक्विड बना, ये आपका वेपर बना, फिर उसको करते हो। इस तरीके से एक्चुअली ये प्रोसीड होता है, ठीक है? हाँ, आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करना जरूर आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट द ग्राफ, ठीक है? बुकलेट में करोगे ना, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। You will find booklet में couple of questions which are there in which you would need to interpret the graphical understanding of distillation, ठीक है? समझ में आया ये पार्ट डिस्टिलेशन का? ठीक है, मैं आपको बुकलेट के एक दो क्वेश्चंस बता देता हूँ, वो आप ट्राई कर लो, ठीक है? बुकलेट में ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो। वन और मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है।
आया इसका आंसर? पॉइंट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.2 है तो टॉलुइन का 0.8 होगा. यस, करेक्ट. देन ए टू बी क्या रिप्रेजेंट करता है? इवेपोरेशन. बी टू सी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी टू सी रिप्रेजेंट्स कंडेंसेशन. सी टू डी दिस रिप्रेजेंट्स वेपराइजेशन सेकेंड स्टेज में, एंड सी टू डी रिप्रेजेंट्स वेपराइजेशन एज वेल एज कंडेंसेशन. नहीं, तो ये आपका एबीसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. राइट्स ऑन डी, करेक्ट आंसर. समझ में आया ये? इज दिस क्लियर? ठीक है. ऑल राइट. नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का डिस्कशन करना रहेगा हमें. दैट विल बी द लास्ट पार्ट इन दिस चैप्टर. बट ठीक है, इट कैन वेट फॉर सम टाइम. आप लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे. यू ब्रिंग योर डाउट्स एज वेल. जो भी आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ट्राई करने के लिए, प्रैक्टिस देम, ब्रिंग योर डाउट्स एंड देन वी विल क्लोज दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. अच्छा, पुराने किसी चैप्टर का लाइक सॉलिड स्टेट एटसेट्रा का कुछ क्वेश्चंस या आपके दिमाग में है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड वांट टू क्लैरिफाई बिफोर वी क्लोज टुडेस सेशन? हाँ, उसमें आपको ऐसा देखना था. देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा? ओके, तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा है सॉलिड स्टेट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर. तो प्रेशर बढ़ाने से, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, एंड टेम्परेचर बढ़ाने से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा. ये एक टिपिकल अंडरस्टैंडिंग रहती है with respect to how we observe the change in the arrangement of cations and anions. ठीक है. even in case of metals and all also, टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है. ठीक है. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर आज का डिस्कशन यहीं पे क्लोज करें. ऑलराइट देन, चलो, थैंक यू.